Uday bhai, we are a 113-year-old chamber, basically rooted in Maharashtra and headquartered in Mumbai. The IMC Chamber of Commerce has been working very closely with the government of Maharashtra and always been in the forefront for supporting the state in case of calamities, be it floods or COVID, by contributing to the CM Fund. We are one of the largest chambers of the state and हम लोग 4 लाख businesses तक हमारी membership पहुंच है. उदय भाई, आपने हमें हमेशा ऑनर किया है. आप हमारे चेंबर में भी पहले आए हुए हैं और ये हमारी बड़ी गर्व की बात है कि रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड बाला साहेब जी had his blessings on the chamber and also honored us by addressing our members in the past. हम जब आपसे जुलाई में मिले थे, आपने हमको कहा था कि आप हमारे पास चेंबर में आएंगे, बट अब कोविड के कारण नहीं आ पा रहे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कोविड की स्थिति कम हो जाएगी तो आप जरूर हमारे पास पधारेंगे. हम उसका वेट करेंगे. Subhash ji has not only visited IMC several times, but also heard us patiently and solved our problems. Thank you, Subhash ji. Maharashtra is going through the worst crisis ever, as it is the worst hit state by the coronavirus outbreak. And we admire the resolute fight that your administration has been giving to the pandemic and maintaining balance between life and livelihood. We believe that in such times as this, the private sector also should play its part to help the government build capacity and resilience for future shocks. There is a need to reboot, reform, and research the economy. With this in mind, the Chamber has decided Mission Engage Maharashtra to be its focus this year and will work closely with the government to help its efforts to revive the economy. IMC Mission Maharashtra would entail its various committees on this mission. In brief, our Agriculture and Food Processing Committee has planned a mega conference to boost the sector. Our Industry and Trade Committee has proposed to work closely with the Industry Ministry to address problems, explore finance, and provide mentorship to MSMEs. सुभाष जी, आपके नेतृत्व में और गाइडेंस से हमने एक MOU साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लास्ट ईयर, जो अनफॉर्चुनेटली एक्टिव नहीं हो पाया. मेरी दरख्वास्त रहेगी आपको और मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि इसको रिवाइव किया जाए, जैसे कि चेंबर इसमें एक्टिव हो सके और हम हमारे स्टेट के MSMEs की मदद कर सकें. Our International Business Committee would like to be actively involved with Magnificent Maharashtra and attracting foreign FDI to the state. Our Mediation Committee would provide free mediation services for intergovernmental issues. Our Ease of Living Committee is working on a white paper to provide improved quality of life and living in the state. Our Health Committee is carrying out an extensive study on how to provide accessible and affordable health infrastructure. Our Startup Committee has planned Spot On, an event to provide instant funding to selected startups. Our Digital Committee is launching ART, a platform to audit, recommend, and train MSMEs in the new digital world. Sir, this will be the platform which will be in English and Marathi, especially for the small and medium scale industries and the tiny industries of the state. That's why we have kept it in Marathi also, and will be launched later today. Apart from the above, Tourism, Infrastructure, Real Estate Development and Knowledge Committee are working on various recommendations for boosting the same in Maharashtra. साहब, मुझे पता है आपको जल्दी है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता. हम सच्ची में बहुत गर्वित फील कर रहे हैं और ऑनर्ड फील कर रहे हैं जो आपने अपना समय हमारे लिए निकाला. उद्घाटन के पहले मैं एक बार आई विल रिक्वेस्ट Rahul Karbanda ji to create an illusionary prelude to the inauguration. Rahul ji has performed across the globe and dazzled audiences of all ages. His non-stop show is packed with stunning acts of creative appearances, levitations, mind-reading disappearances, and more. He has performed thousands of shows for corporates. Over to you, Rahul ji.
Namaskar. A very warm welcome to all the viewers in one of its kind virtual event. I'm excited and thrilled to spread my magic here. First, I would like to thank the IMC Chamber of Commerce and Industries for giving me this opportunity, and I feel honored and privileged to share this virtual stage with the CM of Maharashtra, Honorable Shri Uddhav Thackeray ji. So, without much ado, let's see what this amazing book is offering us. So, I have a box with me, which is totally empty, and here's a little glimpse as to what this book, amazing book, is offering us. Mission Engage Maharashtra. Health and fitness, startup, industry and trade, digital innovation, infrastructure and real estate, travel, tourism and hospitality, international business, and many more, by the IMC Chamber of Commerce and Industries. So out of these 9 cards, these 9 topics, these 9 amazing headings will compile into this amazing book by the IMC Chamber of Commerce and Industries. Over to the President of the IMC Chamber of Commerce and Industries. Thank you. Thank you, Rahul ji. Thank you very much. उद्धव भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसका उद्घाटन आपके शुभ हाथों से हो इस पुस्तक का, तो मेरी दरख्वास्त रहेगी अगर आप इसका विमोचन करें और हमें ऑनर करें। देखो, राहुल जी ने जादू किया, वहां से बुक मेरे हाथ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद और आभार उद्धव भाई। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कुछ शब्द कहें और हमें गाइड करें। माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी सुभाष देसाई जी आपको परिचित नहीं, और बाकी सारे आईएमसी के बुजुर्ग भी और नई जनरेशन भी, शैलेश जी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और जैसे आपने कहा राजू जी, तो मैं तो कई बार आ चुका हूं वहां पर। माननीय शिवसेना प्रमुख पण तिकडे यायचे। तुमच्या मेन हॉलच्या बाजूला एक कॉन्फरन्स रूम आहे, तिकडे कॉफी हाय टी करून मग आपण तिकडे तुमच्या त्या मेन ह्याच्यात सभागृहात जात होतो। कई बार मैं आया हूँ, तब नानिक जी भी थे। विजन, मुंबई के लिए विजन क्या होगी, महाराष्ट्र के लिए विजन क्या होगी, ठीक है, तब एक सपना देखना, इसके अलावा हाथ में कुछ और था नहीं। लेकिन अब वो सपना देखते देखते सपना पूरा करने का अधिकार अपने हाथों में आ गया है, और मुझे खुशी है कि आप सारे लोग उसी उत्साह से आज भी हमारे साथ हो। तो ये जो सपना है वो सपना नहीं रहेगा, वो अभी सच्चाई में उतरेगा। बहुत ही पुराना संबंध है, रिश्ता है अपना, हमारा भी, परिवार का भी, और आपका मुंबई के साथ और महाराष्ट्र के साथ भी। जैसे आपने कहा कि कितने साल हो गए, 1907 के बाद आयएमसी काम कर रही है, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आधीचा काळ सुद्धा तुमच्या संस्थेने बघितलेला आहे, आणि त्याच्यानंतर स्वातंत्र्यानंतरचे ऑलमोस्ट 75 वर्ष, आता 1-2 वर्षात 75 वर्ष होतील। जमाना तो बदल गया, देश बहुत आगे बढ़ गया। आपके यहाँ भी जनरेशन के बाद जनरेशन आ रही है, हमारे यहाँ भी जनरेशन के बाद जनरेशन आ रही है। ये तो चलता रहेगा, पण आपला जो काही रिश्ता आहे, नातं आहे, हे तुटता कामा नये आणि ते कदापि तुटू शकणार नाही। मला खरंच एक अभिमान आहे
की जो एक कार्यक्रम घेऊन तुम्ही आलेला आहात, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र. मैग्नेटिक मध्येच एक ताकत है, और ये ताकत, कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए. कारण महाराष्ट्र एक वेगळं राज्य आहे, वेगळे संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर तो है ही, और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है. हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कॉम्पिटिशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ती नाही आहे. पण ओढून ताणून कोण जर काय घेऊन जात असेल तर ते ऑफकोर्स मी काय होऊ देणार नाही, आणि आपणही मला असं वाटतं कोणी जायला तयार होणार नाही. या निमित्ताने मी बऱ्याच दिवसांनी आपल्या समोर आलेलो आहे. एक बात जरूर है कि कोविड के कारण हम ऐसे नहीं मिल रहे हैं. आज भी आपके यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, जो भी 1 से अधिक लोग हैं, मास्क पहनकर बैठना जरूरी है. काय काय जणांनी तर मास्कचीच इंडस्ट्री उघडलेली आहे. चांगलं आहे. एक गोष्ट, संकटामध्ये सुद्धा पुढे कसं जायचं हा मार्ग आपल्याला शोधत जावा लागतो. पण ज्या वेळेला हे संकट कमी होईल तेव्हा मी नक्की आपल्याकडे येईन, आणि नुसतं मी आपल्या सोबत तिकडे आलो म्हणजे आपल्या बरोबर आहे अशातला भाग नाही. आता सुद्धा आपले माननीय उद्योग मंत्री सुभाष देसाईजी तुमच्या सोबत आहेतच. तुम्ही सगळे मला ओळखता, माझ्या कुटुंबाला ओळखता, आमच्या जनरेशन्सना ओळखता तुम्ही. याच्यामुळे मला आणखीन वेगळं काही भाषण करण्याची आवश्यकता नाहीये. भाषण तो जो लोग नए होते हैं उनके सामने देने की आवश्यकता होती है. आप तो लोग मेरे अपने हो, और अब मैं महसूस करता हूँ हमेशा कि जब भी मैं आपके यहाँ आता हूँ तो महसूस करता हूँ मैं अपने परिवार में आया हूँ, अपने घर में आया हूँ. तो घर में उठकर कोई भाषण नहीं देता. ठीक है, घर में एक फैमिली है, परिवार है. क्या भाई आप क्या करना चाहते हो, बहन जी आप क्या करना चाहते हो, क्या दिक्कत है आपको. आता तर आपलं राज्य आहे, सत्ता आहे आपल्या हातामध्ये, आणि दोघांचं उद्दिष्ट एक आहे, राज्य को आगे बढ़ाना है. याच्यामध्ये कुठली काही अडचणी असतील, अडथळे असतील तर ते आपण नक्की दूर तर करतोच आहोत. नवीन नवीन इन्व्हेस्टमेंट येते आहे, आपण सुद्धा नवीन इन्व्हेस्टमेंट आणता आहात आपल्या माध्यमातून. तुम्ही जे आता 1907 पासून 113 वर्ष आयएमसी या मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रात आणि या देशात काम करते. मला असं वाटतं की तुम्हीच आपल्या राज्याचे ब्रँड एम्बेसेडर झाले पाहिजे, कि हम 100 साल से भी अधिक इस राज्य में है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें. तुम्ही जर का एक ब्रँड एम्बेसेडरचं काम केलं तर मला नाही वाटत आणखीन कोणाची गरज आहे की आपल्याला महाराष्ट्राचं मार्केटिंग करायला पाहिजे. तुम्ही एक यशस्वी एक काय म्हणायचं, तुम्ही यशाची गाथा किंवा यशाची गोष्ट ती तुम्ही सांगू शकता की आम्ही पिढ्यानपिढ्या इकडे राहतो आहोत आणि आम्हाला इकडे कोई कुठली कठिनाई नहीं आई है, दिक्कत नहीं आई है. जब भी कोई समस्या आती है तो सरकार हमारे साथ रहती है, हमारा साथ निभाती है, और इसलिए हम महाराष्ट्र तो छोड़कर नहीं जाना चाहते, बल्कि बाहर से, वो चाहे महाराष्ट्र के बाहर या देश के बाहर, विदेश से भी कोई आना चाहते हैं तो उनके लिए आप एक काय करण्याचं मी म्हणेन महाराष्ट्राचे दूत म्हणून तुम्ही समोर गेलं पाहिजे. माझं फक्त एकच म्हणणं आहे की या सगळ्या काळामध्ये संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था नाही म्हटलं तरी थोडी स्लोडाऊन झालेली आहे, जरूर झालेली आहे. पण स्लोडाऊन जरी झाली असली तरी आता आपण बघतो की थोडंसं आपण ओपन केल्यानंतर ही इकॉनॉमी परत वरती आलेली आहे. म्हणजे काय की पैसा नाहीसा नाही झाला, जसं डिमॉनिटाइजेशन के वक्त हुआ था, पूरी नोट ही पैसा ही गायब हुआ था, वैसा पैसा गायब नहीं हुआ है. लेकिन जब वो चक्र शुरू हो जाएगा तो पैसा आगे आगे उसका बहना शुरू हो जाएगा. आणि त्याच्यासाठी मला असं वाटतं काही तुमच्या ज्या काही सूचना आहेत त्याची फार आवश्यकता आहे. नेमकं काय करायला पाहिजे, कुठे अडलाय पैसा, कुठे काय प्रॉब्लेम झालेला आहे, ह्या गोष्टी तुम्ही जर का सुचवत गेलात. आणखीन ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे काय, क्या करना चाहिए, हर बिझनेस की अलग अलग बातें होती है. नुसतं ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणून होणार नाही, तर प्रत्येक बिझनेसला काय करायला पाहिजे, अटी तटी शर्ती कोणत्या थोड्याशा सोप्या केल्या पाहिजेत. परवानग्या आता आपण खूप कमी केलेल्या आहेत, आणखीन पण करतो आहोत. एक प्यारा शब्द होता है वन विंडो सिस्टम. वो भी विंडो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए जरूर, लेकिन वो खुली भी तो होनी चाहिए. लेकिन वन विंडो है और वो विंडो हमेशा के लिए बंद है, तो फायदा नाहीये. तर त्याच्यामध्ये तुमच्याकडनं काही सूचना पाहिजेत की नवीन गोष्टी आम्ही काय करू शकतो. मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे की जवळपास 60,000 कोटीचे एमओयूज आपण देशी आणि विदेशी कंपन्यांबरोबर केले. हमेशा यही बात होती है कि एमओयू होते हैं और बाकी सारी बातें हम भूल जाते हैं. वैसा हुआ नहीं है और होगा भी नहीं. मैंने कई बार कहा है कि जून में जितने एमओयूज हुए थे उनमें से ऑलमोस्ट 70%
जो MOUs में जरूरी बातें थी वो बातें हुई है, लैंड दे दी गई है, परमिशंस दे दी गई है, बाकी सारी चीजें वो भी चलती रही है। और मैं तो पीछे पड़ा हूं, जल्द से जल्द सिर्फ 50,000 60,000 नहीं 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्व्हेस्टमेंट अपने स्टेट में आनी चाहिए, मुंबई में महाराष्ट्र में आनी चाहिए। आणि ही जर यायची असेल तर नुसतं तोंडी किंवा कागदावर तो बोलून चालणार नाही, प्रत्यक्ष काम झालं पाहिजे। आणि ते काम करत असताना तुमच्या सगळ्यांची मला आवश्यकता लागणार आहे, मदत लागणार आहे। आणि म्हणून आपण जे म्हणतो की मिशन एंगेज महाराष्ट्र, त्या निमित्ताने तुमच्या काही गोष्टी कल्पना असतील त्या तर पाहिजे, पण मी पुन्हा पुन्हा सगळ्यांना सांगेन की तुम्ही महाराष्ट्राचा चेहरा म्हणून देशाला आणि जगाला सांगितलं पाहिजे की तुम्ही आमच्याकडे या, तुमच्या माध्यमातून नवीन लोक आली पाहिजेत। आणि मगाशी जो मी एक मुद्दा तुम्हाला सांगत होतो, सांगता सांगता थोडासा बाजूला गेलो, तो म्हणजे जब हम विकास की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है जरूर, लेकिन विकास के साथ साथ जो कॉमन मैन है उसके रोजी रोटी का भी एक काम हमें करना पड़ता है। उसको रोजी रोटी कैसे मिले? विकास मतलब सिर्फ मशीन लाए और ऑटोमेटिक सब प्लांट चल रहा है, तो मैं हाँ विकास है लेकिन वो पूरा विकास नहीं है। जब लोगों को रोजी रोटी मिलती है, अदरवाइज अगर जॉब अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट नहीं करेंगे तो जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो खरीदेगा कौन? जे कस्टमर आहेत तो कॉमन मॅन आहे, त्यांची बाईंग कॅपॅसिटी, परचेसिंग पॉवर सुद्धा वाढली पाहिजे। आणि ती वाढवायची असेल तर जॉब अपॉर्च्युनिटी म्हणजे आपल्याकडे आपण महाजॉब पोर्टल वगैरे जे केलेले का केलेले आहे, तो ज्यादा से ज्यादा लोक उनको काम मिले, त्यांच्या घरातली चूल पेटेल। आणि ती पेटवायची असेल तर ह्या तुमच्या मिशन एंगेज महाराष्ट्राच्या माध्यमातून मग तुम्ही डिजिटल काही क्रांती रिव्होल्युशन करा, आणखीन काही करा, पण त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांना, जनतेला आपल्याला आपण जॉब जर का देऊ शकलो तर ते सुद्धा एक सुखी समाधानी असं आयुष्य जगतील। महाराष्ट्र पण पुढे जाईल, तुम्ही सुद्धा पुढे जाणार आणि महाराष्ट्र एक वेगळं उदाहरण ह्या विचित्र कोरोना कोविडच्या परिस्थितीमध्ये जगाच्या समोर ठेवू शकेल की सगळीकडे अडीअडचणी असताना महाराष्ट्राने एकमेकाला सांभाळून, मग ते वर्कर्स असतील, इंडस्ट्रियलिस्ट असतील, त्यांना एकमेकाला सांभाळून, एकमेकाचा हात पकडून, सरकारचा पाठिंबा घेऊन, सरकारचं तर साथ सोबत तर आहेच, ती घेऊन पुढे कसं जायचं हे महाराष्ट्र दाखवून देऊ शकेल। आणि म्हणून मला असं वाटतं की ह्या अभियानाचं उद्घाटन माझ्या हस्ते करताय, मला सगळ्यांना धन्यवाद द्यायचे की तुम्ही ही संधी मला दिलीत। पण मी वचन देतो की नुसतं उद्घाटन करून मी गप्प बसणार नाही, मी पूर्णपणे पूर्ण ताकदीने, मी स्वतः आहे उद्योग मंत्री आणि पूर्ण महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, तुमच्या प्रत्येक गोष्टीत जिथे जिथे तुम्हाला काही अडथळा येईल किंवा जिथे जिथे तुम्हाला चांगल्या कल्पना सुचतील आणि आवश्यकता लागेल तिथे पूर्णपणे तुम्हाला साथ दिल्याशिवाय राहणार नाही। आपण एकत्र येऊन हा महाराष्ट्र जो बलवान आहेच तो आणखीन बलवान करूया। सगळ्यांना एकदा पुन्हा धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। थैंक यू उद्धव भाई, आपने जो आपके वचन कहे हमको, एंड वी आर रियली एंथ्यूज्ड बाय योर वर्ड्स एंड वी विल फॉलो व्हाट यू हैव सेड। इसीलिए हमने एंगेज महाराष्ट्र का मिशन लिया है, क्योंकि ये हमारा स्टेट है, हम यहीं से स्टार्ट किए हमारी जर्नी। आज 113 साल हो गए हैं और हमें महाराष्ट्र में ही हैं। आगे हमारा है मेंबरशिप सब जगह इंडिया में, बट मेन हमारा गढ़ ही महाराष्ट्र है। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ चेंबर की तरफ से कि हम महाराष्ट्र के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपकी लीडरशिप में इस कोविड के परिस्थिति में भी आपने इतना अच्छा काम किया है और इतना इन्वेस्टमेंट लाया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत सराहनीय है। और थैंक यू आपके वर्ड्स के लिए और ये उद्घाटन के लिए टाइम निकालने के लिए। सॉरी, एक ही सेकंड, अभी एंगेज महाराष्ट्र, मिशन एंगेज महाराष्ट्र में मैं सुभाष देसाई को आपके साथ एंगेज कर मैं थोड़ा सा निकलता हूँ दूसरे नहीं, मुझे जाना है, जानता हूँ। थैंक यू साहब, आप इतना समय निकाले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू उद्धव भाई, थैंक यू। We'll just wait 2 minutes for Honorable Subhash ji to join.